أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ میرے انتہائی عزیز قرآن دوست اور احباب، قرآن سے محبت کرنے والے میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق 5A میں آپ سب کو خوش آمدید اور دلی مبارکباد کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے کل کے ہم نے لیسن میں سورۃ الفاتحہ کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے، اسے مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے اب بہتر طریقے سے نماز میں پڑھا کریں گے انشاءاللہ، اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنے سبق کا جو سٹارٹ ہے وہ لیں گے اذان سے۔ اذان کی کلمات اور اس کا ترجمہ اور گرامر میں انشاءاللہ ہم آج حروف پڑھیں گے، جن میں لی، من اور ان، اس کے علاوہ بھی حروف ہیں لیکن وہ ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے ہم لی، من اور ان، اور ان کو ہم ضمائر کے ساتھ جوڑ کے پورا ٹیبل بنائیں گے۔ آپ کو پتہ نا ضمائر جو ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ٹھیک ہے؟ ان ضمائر کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ کر پورے پورے ٹیبلز انشاءاللہ بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہی نقطۂ تعلیم، آج بھی ماشاءاللہ بہت اچھا نقطۂ تعلیم ہے سیکھنے کے لیے۔ اور اس سبق میں 13 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 4084 بار آئے ہیں، الحمدللہ کہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں ہماری ووکیبلری بیٹری، ہم پورے جو قرآن کے الفاظ ہیں نا 78,000، اس کا آلموسٹ 1/4 پارٹ ماشاءاللہ ہم آج اس سبق کے اختتام پہ اس کو کمپلیٹ کر جائیں گے۔ 57 الفاظ اب تک ہم سیکھ جائیں گے اس سبق کے اختتام پہ جو قرآن میں 19,000 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ہے اذان کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ اذان بیسیکلی ہے کیا؟ اذان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اذان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات ہیں، ٹھیک ہے؟ مخصوص اوقات میں ہمیں ملاقات کے لیے، کامیابی کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 5 دفعہ دن میں اذان دی جاتی ہے جس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا اچھا ہمارا نظام ہے دین اسلام کا کہ ہم اپنے رب سے، اپنے خالق کائنات سے دن میں 5 مرتبہ ملاقات کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے مذاہب میں آپ دیکھتے ہوں گے، جیسے کرسچنز، وہ حیران ہوتے ہیں کہ مسلمز کیا کرتے ہیں، یہ تو بار بار نماز پڑھتے ہیں، بار بار اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، ہم تو صرف سنڈے کو بس چرچ چلے جاتے ہیں اور اپنی جو ان کی عبادت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو نان مسلم ہندو وغیرہ ہیں، ان کے بھی کوئی 1-2 ٹائم ہوتے ہیں، آئی تھنک مارننگ میں یا اس طرح۔ تو ہمیں دیکھیں کہ ہم اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے ہمارے لیے، مطلب اللہ معاف کرے، ہم تو کتنی دفعہ بھول بھی جاتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، ہم نے مرنا ہے اور ہماری ایک ابدی زندگی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو نا؟ تو کیا ہے، اذان ہمیں بار بار یاد دہانی کرواتی ہے کہ ہم نے اپنے خالق کائنات کے ساتھ ایک نہ ایک دن واپس ملنا ہے، اس کی طرف جانا ہے لوٹ کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اذان کی کلمات ہیں، اس کے مدد سے ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھیں گے کیونکہ یہ سارے الفاظ قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بڑا، ٹھیک ہے؟ عربی میں کبیر لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بڑا، اور اکبرو اس سے بڑا، الاکبر سب سے بڑا، اسی طرح کثیر چھوٹا، اکثر اور چھوٹا، مطلب ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم جب اللہ کے لیے یوز کرتے ہیں نا تو اکبر، کہ وہ تو کمپیریزن میں نہیں آتا، اللہ تو سب سے بڑا ہے نا، اللہ سے بڑا کیا کوئی ہے؟ اکبر من، اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ تو یہاں پہ یہی 2 کلمات دوبارہ ریپیٹ کیے گئے ہیں تکرار زور دینے کے لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا مقابلہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ ایک اکیلا واحد خالق ہے، باقی ہر چیز اس کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟
اللہ ताला कुव्वत, इज्जत, शान शौकत, हर अच्छी सिफ्त में सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। आप अल्लाह के बारे में जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे उतना ही आपकी दिल से तारीफ निकलेगी। आपको उसकी हैबत का, उसकी इज्जत और जलालत का आपको अंदाजा होगा। जैसे हमने ये पहले सूरतुल फातिहा में भी पढ़ा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, जो मैंने आपसे कहा था, वो आदत भी हमने सीखी थी कि जितना ज्यादा इल्म हम हासिल करेंगे, जितनी ज्यादा नॉलेज हम हासिल करेंगे अल्लाह के बारे में, हमें और उसका, उसकी वहदानियत का यकीन बढ़ता जाएगा। जैसे आपसे बात पहले भी जिक्र किया कि एक मुसलमान होने के नाते हमें तो ज्यादा इल्म हासिल करना चाहिए, साइंस पढ़नी चाहिए, स्पेस साइंस, ईच एंड एवरीथिंग। कि किससे किस लिए? ताकि हमें अल्लाह की हैबत, अल्लाह की इज्जत और जलालत, हर चीज का अंदाजा हो कि अल्लाह कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है, क्या कुछ अल्लाह ने नहीं बनाया। तो ये चीज जहन में रखते हुए आपने, जैसे यहाँ पे देखिए फज्र की अजान, हम फज्र की अजान होती है और हम मानते तो हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन हम क्या उस पे अमल भी करते हैं? फज्र के टाइम कितने ही लोग उठते होंगे फज्र की नमाज पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे हम किसकी बात सुनते हैं? अपनी अपनी नफ्स की या अल्लाह ताला की बात सुनते हैं? अल्लाह ने तो हमें बुलाया कि आओ नमाज पढ़ो, और हम क्या करते हैं? सोए रहते हैं। तो फिर हमने किसको बड़ा जाना? अल्लाह को बड़ा जाना या अपने नफ्स को बड़ा जाना? तो इसीलिए सिर्फ कहने से नहीं होगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हमें अपने अमाल से शो करना है कि अल्लाह वाकई तू सबसे बड़ा है। अपने नफ्स को पसे पुश्त डालना है और अल्लाह को एक मानना है और सबसे बड़ा मानना है। तो इसके लिए आपने अल्लाह से दुआ भी करनी है कि ए अल्लाह, मुझे तू अपनी जिंदगी में अपना बड़ा मानने की तौफीक दे। ठीक है? ये नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे, हाँ हमें पता है जी इस्लाम में तो ये चीजें हैं लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे बहुत सी हमारे त्योहार इस तरह के हैं, हमारे शादी ब्याह इस तरह के हैं, और चीजें और रसूमात जो हमने दूसरी जो सोसाइटीज, दूसरे हमने वेस्टर्न कल्चर वगैरह से, इंडियन से, उनसे क्या चीजें अडॉप्ट की हुई हैं अपने कल्चर में। ठीक है? तो हमने क्या करना है? अपने कोलो फेल से शो करना है कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है। और वो कैसे होगा? जब हम तमाम तर अपने काम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करेंगे। ठीक है? तो आप इसको एक दफा पढ़िए इस एहसास के साथ कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लिम, सिखाइए। ठीक है? इसको आपने सिखाना भी है कि हमने सिर्फ अपनी जबान से नहीं कहना कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारे अमल से भी शो होना चाहिए कि वाकई अल्लाह तो सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं और ये देखें कि दो दफा अजान में शुरू में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ये जोर दिया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है कि इसके बाद जो अगली बात आने वाली है वो काबिले गौर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको समझने के लिए, उस उन कलमात को समझने के लिए पहले क्या कहा गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो वो कलमात क्या है? ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि इसको तवज्जो से सुनना है आपने, इसको समझना है, ये कितने इंपॉर्टेंट और कितना जरूरी है। इसकी इसकी क्या कहते हैं, इसको जरूरी शो करने के लिए बताया गया है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। पहले आपने वो बात, और फिर अभी इन कलमात को देखिए, कितने खूबसूरत कलमात हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु, अशहदु का क्या मतलब है? मैं गवाही देता हूँ। जैसे शहादत, आप वही बात के उर्दू के अल्फाज से मानी याद रखने के लिए उर्दू की मदद ले सकते हैं। जैसे शहीद, वो शहीद होके अपने शो करता है कि ए अल्लाह मैं तेरी राह में कुर्बान हो गया, गवाही देता है ना। ऐनी शाहिद होना, जिस तरह हम कोर्ट्स वगैरह में अक्सर ये अल्फाज यूज होते हैं कि मैं इस केस का ऐनी शाहिद हूँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने, मैं गवाह हूँ इस चीज का। ठीक है? तो आपने इस तरह इस लफ्ज का मानी याद रखना है, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। जैसे आउजू, आबुदू, आउजू में आपने कहा था ना मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, तो उसी तरह आपने इसको याद रखना है कि मैं गवाही देता हूँ। अब ये देखिए अन, अन का क्या मतलब है? के। ये एक छोटा सा वर्ड है और ये देखिए कुरान में कितनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है कि आप सिर्फ इसका मतलब याद कर लें तो आपको कुरान के 571 अल्फाज का मानी याद हो गया है। अन का क्या मतलब है? के। मैं गवाही देता हूँ के। वैसे तो
یہ سمپل ان ہے نا، لیکن یہاں پہ جب جوڑا جائے گا لا کے ساتھ تو کیا بن جائے گا؟ اشہد اللہ، کیونکہ لا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب سیپریٹ پڑھا جائے گا تو کیا آئے گا؟ ان۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ لا الہ، لا، لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ ہم نے کل پڑھا ہے کہیں لا؟ آپ نے پہلے کہیں پڑھا ہے لا کا کیا مطلب ہے؟ کل اگر کسی سبق میں آپ نے پڑھا ہو، کسی کو یاد ہو، تو چیٹ باکس میں رپلائی کر سکتا ہے۔ جی سسٹر رائلا از سیئنگ یس، ویری گڈ۔ کہاں پڑھا تھا ہم نے لا؟ ولدالین، ٹھیک ہے؟ وا اور لا نہیں، جو ہم نے کل پڑھا۔ اور اس کی نمبرنگ کسی کو یاد ہے کہ ولا کتنی دفعہ آیا تھا؟ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طرح آپ کا مطلب چیک کرنے کے لیے کہ کیا آپ کے ذہن میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے کہ ولا کتنی دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے؟ آلموسٹ 1650، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں یاد رکھنے کی نہیں ہے، لیکن ایک اس سے نا شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں کتنی دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو صرف لا کا مطلب اگر آپ یاد رکھیں تو کتنے زیادہ الفاظ آپ کو قرآن کے یاد ہو رہے ہیں۔ تو لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ اور اب یہ دیکھیں، صرف لا ہی نہیں یوز ہوتا نہیں کے لیے، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، جیسے ماں۔ ماں کے تین معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، کیا، اور تیسرا کیا ہے؟ جو۔ کنیکٹنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جب کنیکٹنگ کے لیے یوز ہوگا تو ہم جو کہیں گے۔ جیسے آپ نے کہا نا ماں دین ہوں، ماں کتابوں کا، ٹھیک ہے؟ کیا، ماں اسم کا، تمہارا کیا نام ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا عربی کی یہی خوبصورتی ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا کا مطلب نہیں ہو گیا، اور نیچے دیکھیں لم۔ لم کا بھی مطلب ہوتا ہے نہیں، ڈیڈ ناٹ، لیکن یہ ماضی میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لم نہیں، لن ہرگز نہیں، مطلب فیوچر کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے کس معنی میں یوز ہوئے ہوئے؟ نہیں کے معنی میں۔ اور یہ دیکھیے اس کا نمبر سائڈ پہ کتنا بڑا فگر ہے، یہ 4340 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں۔ تو آپ نے اس کو اچھا سے ذہن میں بٹھانا ہے، اگلی کلاس تک آپ نے اس کو، اور اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ موبائل پہ رکھ لیں، وال پیپر پہ لگا دیں، تو آپ کو انشاءاللہ یہ نہیں بھولے گا، ٹھیک ہے؟ آپ ہر نماز کے بعد اسے دیکھیں، ریپیٹ کریں، تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے یہ یاد ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں الہن، الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معبود۔ اور الہن کی کیا جمع ہے؟ آلیہتن۔ آپ نے کل پڑھا تھا نا، کل ہی کی کلاس میں مونس کے گول تا، لیکن آپ کو میں نے ہمیشہ کہا ہے نا کہ آپ نے اپنے دماغ میں ایکسیپشن کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی ہے کہ کچھ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ آلیہتن یہ الہ کی جمع ہے، لیکن یہ مونس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے آخر میں گولتا ہے، لیکن یہ مونس نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میجورٹی زیادہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ گولتا والے الفاظ مونس ہوں گے، لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر ان ایوری لینگویج، صرف عربک کی بات نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ الہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آلیہتن۔ یہ آپ کے کوئز میں بھی آ سکتا ہے، ہوم ورک میں بھی، بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا سا کہ الہن کی جمع کیا ہے؟ آلیہتن۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ سوری۔ تو الہ کیا ہے؟ الہ کے اہم معنی، الہ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ الہ کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس سے مدد کی مانگی جائے، مطلب اپنے آپ کو آپ نے سبمٹ کر دینا ہے اللہ کے لیے، آپ نے خود کو سبمٹ کر دینا ہے۔ ایک رب کا کانسیپٹ ہے نا، اور ایک الہ کا۔ جو تھے نا ہمارے یہ عرب والے لوگ جب اسلام نہیں لا رہے تھے، تو وہ انہوں نے ایک یہ بات بھی کی تھی کہ ہم اللہ کو جو ہے رب ماننے کو تیار ہیں، خالق ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہم الہ نہیں مانتے۔ وہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے نا کہ کلمے میں ہمارا کیا ہے؟ لا الہ۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ لا ربا، لا خالقہ، لا مالکہ، نہیں، لا الہ۔ تو الہ میں ایسی کیا بات ہے کہ کلمے میں لا الہ؟ تو وہ بھی کہتے تھے ہم سب کچھ ماننے کو تیار ہیں، جھگڑا ختم کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن الہ نہیں مانتے۔ الہ ماننے میں انہیں کیا مسئلہ تھا؟ الہ سبمٹ، آپ نے خود کو پوری طرح سبمٹ کرنا ہے اللہ کے سامنے کہ ہاں صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے چھوٹے موٹے کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں، ہم دوسروں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، مطلب چلے یہاں پہ وہ پھر عقیدے والی بات آ جائے گی، لیکن کیا ہے کہ الہ کا کیا کانسیپٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس پر توکل کیا جائے، شکر ادا کیا جائے۔
सिर्फ और सिर्फ उसी का हुक्म माना जाए। इन तमाम बातों में अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इलाह नहीं है। अब हम गवाही तो देते हैं, हम अजान में भी सुनते हैं, हम नमाज में भी, तशहुद में भी ये अल्फाज रिपीट होते हैं, हम नमाज में भी पढ़ते हैं, हम अजान में भी सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा कौल और फेल में फर्क आता है कि हम शहादत तो देते हैं, लेकिन जब हम पूरी तरह से उसके ऊपर अमल नहीं करते। वो किस तरह कि जब हम अल्लाह को पूरी तरह, कि हम थोड़ा से गाफिल हो गए, थोड़ा सा हमारे पे कोई मुश्किल परेशानी आ गई, तो हम बस औरों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ओके। तो आपने क्या करना है, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत, ठीक है, उसी को खालिक, उसी को मालिक। कोई भी मुश्किल परेशानी है, वो हदीस भी है ना कि आपके जूते का तस्मा भी टूट जाए, वो भी आप अल्लाह से मांगे, ठीक है, अल्लाह आपको देगा। अल्लाह हर चीज का मालिक और हाकिम है। उसी की इबादत और इताअत करनी है, उसी से मदद मांगनी है और उसी पर भरोसा रखना है। जिंदगी के हर पहलू में उसके कानून पर चलना, अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त, उसको पीछे, जिस तरह भी मैंने आपको फजर की नमाज का जिक्र किया कि उसकी अजानें हो रही होती है लेकिन हमारी हिम्मत नहीं लग रही होती। हम गर्मी सर्दी में बहाना, गर्मियों में क्या है जी, न रातें छोटी हैं, आंख नहीं खुलती, सर्दियों में रात तो लंबी हो गई लेकिन अब सर्दी है, ठंड है, कैसे वजू करें, कैसे उठें, अपने नरम बिस्तरों को, गर्म बिस्तरों को कैसे छोड़ें। तो आपने फिर तो सिर्फ मुंह से ही बोला ना कि अल्लाह सबसे बड़ा है और मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, अब अमल से तो शो नहीं किया। तो आपने क्या करना है, अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात को, उनकी पैरवी नहीं करनी, ठीक है। तो कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है कि हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है। हमें उम्मत वस्त बनाकर भेजा गया है ना। दूसरे कौमों का क्या था, हम उनसे किस तरह डिफरेंट है। उनके बाद अनबिया इकराम का एक सिलसिला चलता आ रहा था, लेकिन हम, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना, तो उनका क्या काम था, पैगाम को आगे पहुंचाना। तो अब वो हमारी ड्यूटी बन गई है, हमने दीन इस्लाम का एक एक काम जो है वो हमने आगे पहुंचाना है। कि वो हदीस मुबारका भी है, बल्लिगू अन्नी वलो आयतन, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे कि एक आयत ही क्यों ना हो। मैं इसलिए आपको कहती हूँ रोजाना हर लेक्चर में कि आप जो भी पढ़ें उसको आपने आगे लाजमी टीच करना है, आगे लाजमी पहुंचाना है, कि ये हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है कि हमने ये चीज आगे पहुंचानी है। तो अब हमारे ऊपर क्या लाजम है, हम हर अजान में, हर अकामत, हर तशहुद में हमें ये सबक याद कराया जाता है कि आपने ये बात बतानी है कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है। लेकिन अफसोस है कि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद भी हम मुसलमान कितनी दफा इस बात को इग्नोर कर देते हैं और हमें नहीं याद रहता। तो आए दुआ करें कि अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। तो फिर से अल्लिम, सिखाइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ठीक है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और क्या है यहाँ पे कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ पे देखिए, अन्ना, अन्ना का मतलब भी क्या है, के। इसके और मतलब भी हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अभी के वाले मतलब को जहन में रखना है, ठीक है। अभी पीछे हमने अन पढ़ा था ना, अन का मतलब भी क्या है, के, और अन्ना का मतलब भी क्या है, के। इन दोनों का मतलब क्या है, अगरचे कि ऐसे होता है अरबी में कि एराब की चेंजेस की वजह से मतलब चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपने फिलहाल ये चीज याद रखनी है कि अन का मतलब भी के है और अन्ना का मतलब भी क्या है, के है, ठीक है। ये देखिए, अन जो भी हमने पढ़ा था, और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है, के। एक और लफ्ज भी होता है ना, इन। इनका मतलब आता है किसी को, इनका क्या मानी है, इनका, इनका मानी पता है किसी को? अगर, वेरी गुड, सिस्टर मरवा ने रिप्लाई किया, सिस्टर अरमिश, सिस्टर में सलमा। इंशाल्लाह, हम कहते होते ना इंशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, ठीक है। तो इन भी कुरान में 691 टाइम्स आया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और लफ्ज भी होता है इन्हीं से मैचिंग, वो क्या है, इन्ना। इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है और इस तरह इसका मानी भी चेंज होता है, ठीक है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, आपने इसको इस एग्जांपल से याद रखना है। इन्ना का क्या मतलब है, बेशक। तो ये देखिए, ये चारों लफ्ज हैं आपके सामने, इसको भी आपने इंशाल्लाह अच्छे से याद रखना है
किसी पर्ची पे लिख के अपने जेब में डाल दें, उधर से देखा करें। अगली क्लास तक आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए इंशाल्लाह। या स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल पे, उसी तरह जो मैंने आपको बताया वॉलपेपर पे लगा दें, आपके जहन में इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो अन्न है, अन्ना है, इन है और इन्ना है। अन्न का और अन्ना का मतलब के हो गया। और इन आप इस मिसाल से भी याद रख सकते हैं, आपके सामने ये मिसालें मौजूद हैं इंशाल्लाह। और इन्ना का क्या मतलब है? बेशक, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद है अगला वर्ड मुहम्मदन, ठीक है। मोहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़ा है ना आपने? किस किस ने दुरूद पढ़ा है? आपको पता है ना, जब भी हमारे नबी का नाम लिया जाए तो दुरूद लाजमी पढ़ना है, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप मस्ट पढ़े, ठीक है। ये देखिए आप, रसूल, रसूल की जमा क्या है? रसुल। अब ये भी यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब थोड़ा चेंज हुआ। जो हमने कल पढ़ा या उससे पहले पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया ना, जमा जब भी हम बनाते हैं वाव नून या नून का इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन वो क्या था? एक तरीका था। मैंने आपसे कहा डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जो ज्यादातर यहाँ पे हम अभी जो पढ़ रहे हैं सिंपल, वो वाव नून और या नून का इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सी इस तरह की एग्जाम्पल्स भी होती हैं। ये देखिए, अब जैसे रसूल की जमा क्या है? रसुल। ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। रसूल की जमा क्या है? रसुल। अच्छा, अब देखिए, मैं गवाही देता हूँ यानी मेरी बातें और मेरा अमल, घर में हो, ऑफिस में हो, बाजार में हो, हमारे अमल से ये शो होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चूँ चरा मानते हैं। और ये हक व बातिल की कसौटी है कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमारे ऊपर लाजिम है। हमें तो उसके अलावा किसी कोई दूसरी हुज्जत की, दूसरी दलील की जरूरत ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पसंद किया वही मेरी पसंद है। उस पे आंखें बंद करके आपने ईमान लाना है, ठीक है। कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमारे ऊपर लाजिम है ना, कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, हदीस है ना ये। तो हमने क्या करना है? असल में हम अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, लेकिन किसकी सुन्नत पे अमल करके? अपने प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लिम, सिखाइए। आपने ये भी सिखाना है। क्या सिखाना है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब ये देखिए आगे अगली हमारी है, हैया अलस सला हैया अलल फला, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। हैया का क्या मतलब है? आओ, ठीक है। हैया, आओ। अला का मतलब है पर। आपने कल पढ़ा था ना? कहाँ पढ़ा था? गैरिल मगदूबी अलैहिम। अला और हिम जो आपने कंबाइन किया था, अलैहिम बन गया था, ठीक है। तो अला का मतलब क्या है? पर। लेकिन यहाँ पे हम जब रनिंग ट्रांसलेशन करेंगे, चूंकि हम उर्दू तर्जुमा कर रहे हैं, तो एज इट इज अक्सर हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? आओ तरफ नमाज के, ठीक है। वैसे अला का मतलब आपने याद रखना है कि क्या होता है? पर के। तो अब आप मुझे बताएं, अस्सलात क्या है? ये इस समय फेल है या हर्फ है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। अस्सलात क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? आंसर कीजिए। सिस्टर उम्मे सलमा, इस सिस्टर पाकीजा, खास सिस्टर अरमिश, वेरी गुड माशाल्लाह। और अब ये बताएं कि ये मुअन्नस है या मुजक्कर है? सिस्टर कवल, खास इसम, वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं, ये मुअन्नस है या मुजक्कर है? कौन बताएगा? हमने कल ही पढ़ा था। नो सिस्टर पाकिजा, हमने कल पढ़ा था ये मुअन्नस। वेरी गुड सिस्टर उम्मे सलमा, मुअन्नस। मैंने आपसे कहा ना, हमायल, तारिक, कवल, जुबैर, वेरी गुड, अरमिश, कि आखिर में गोल ता आती है या उसकी जमा में अलिफ ता आती है। ये देखिए, सलात सिंगुलर भी लिखा हुआ है और सलावात उसका जमा भी बताई हुई है, अलिफ ता का इजाफा। तो ये क्या है? हमारे पास मोन्नस है। देखिए, हम जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम उसे अप्लाई भी कर रहे हैं। कितना खूबसूरत ये कोर्स डिजाइन हुआ हुआ है कि जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं वो आइंदा क्लास में किसी ना किसी शेप में, शक्ल में वो आ जाती है चीज। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये मोन्नस वर्ड है, ठीक है। इसके आखिर में गोल ता है और इसकी जमा में अलिफ ता है।
تو آگے حیا اللہ، اسی طرح آؤ نماز کی طرف، سوری الفلاح کامیابی کی طرف، ٹھیک ہے؟ فلاح آخرت، فلاح دارین، فلاح عام طور پہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کامیابی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایسے۔ تو ہمیں اس سے کیا اسباق ملتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں وہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نماز کی طرف آؤ، مسجد میں آؤ اکٹھے، وہاں پہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو آؤ گے تو آپ کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ کیا مطلب ہے کہ نماز میں ہے کامیابی ہے۔ اس کے ڈفرینٹ فائدے ہیں، کیا اجتماعی، کیا انفرادی، ذہنی، جسمانی، مطلب معاشرتی، معاشی، ہر طرح کے فائدے ہیں۔ نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے میں نے آپ کو بتایا نا سکون ملتا ہے، کہ ہماری باڈی دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہے نا، ایک مادی جسم ہے ہمارا، ایک روحانی۔ تو روحانی چونکہ اس عالم کی نہیں بنی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ کسی اور ہی عالم سے ہے، تو اس کی خوراک بھی ہمیں وہیں سے چاہیے۔ تو وہ کیا ہے؟ ذکر الہی، نماز، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ پھر قرآن کو غور سے پڑھیں، جس طرح ہم اب قرآن کو پڑھنے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گی؟ ہدایت، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا، آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ دنیاوی فکروں سے ہمیں آزادی ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو جسمانی فائدے کیسے ہیں؟ کہ ہم وضو کرتے ہیں، اپنی صفائی کرتے ہیں، اپنے کپڑے صاف ستھرے پہننا، ٹھیک ہے، بار بار اپنے بازو، ہاتھ، پاؤں، منہ دھونا، ٹھیک ہے؟ اور پھر سجدہ دیکھیں، سجدے کا اب کس طرح سائنس نے بتایا ہے کہ ہمیں وہ واحد پوزیشن ہے کہ ہمارا بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے ایزیلی، مائنڈ کو بلڈ کی سرکولیشن ملتی ہے نا، وہ واحد پوزیشن ہے، کہ ہم اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ لمبا سجدہ کرنا چاہیے۔ تو ہم تو بس اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر سائنس کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو طرح طرح کے فائدے ہمارے لیے اس میں ہڈن ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ وقت کی پابندی، آپ اپنا سارا ٹائم ٹیبل نماز کے مطابق بنا سکتے ہیں، کہ میں فجر کے بعد اتنا پڑھوں گا، میری یہ میٹنگ ہے، اس کو میں نے عصر کے بعد رکھنی ہے، میں نے مغرب کے بعد یہ کرنا ہے، عشاء کے بعد میں نے سارے کاموں کو وائنڈ اپ کر دینا ہے۔ تو آپ مطلب یہ کیا ہے؟ آپ خود کو پنکچوئل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے اکارڈنگ۔ اجتماعی فائدے دیکھیں، جس طرح ہمارے بردرز حضرات جاتے ہیں نماز پڑھنے مساجد، تو کیا ان کو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے، پڑوسیوں سے ملاقات ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے خوشی غمی کا، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، معاشرہ بہتر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کیا ہے؟ معاشرتی فائدہ، اجتماعی فائدہ، اور سب سے اہم فائدہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ تو یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی نا کہ انسان نماز کو نہیں آتا، اس کا بہت ضروری کام ہے، اس کی کوئی میٹنگ ہے، بزنس میٹنگ ہے، یا کوئی اور اس نے کرنا ہے کام، تو پھر کیا ہوگا جی؟ وہ نماز ابھی سکپ کر رہا ہے تاکہ اس کا وہ جو اسے فائدہ پہنچنا ہے، جو نفع پہنچنا ہے، وہ جی اسے نہیں ملے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ نے نماز کو پہلے رکھنا ہے، تو ایوری تھنگ ول بی آن اٹس رائٹ پلیس۔ جب آپ نماز کو اپنے ایگزیکٹ ٹائم پہ پڑھیں گے نا، تو ہر چیز آپ کا مطلب آپ کے ٹائم کے مطابق۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگزامپل کیا دی ہوئی ہے، کہ اس نادان شخص کی طرح نہ بنے جو الٹی سمت میں، کہ آپ نے جی لاہور جانا ہے اور آپ نے پشاور کی موٹر وے پکڑ لی ہے، اور آپ ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ کا فاصلہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اس نادان شخص کی طرح بنے ہوئے ہیں کہ میں اپنی منزل کی طرف جاتا جا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کا فاصلہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے، بچائے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے۔ تو آخر میں یہ الفاظ دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمات آپ نے کبھی سوچا کہ دوبارہ کیوں؟ ہم نے تو شروع میں پڑھ لیا، شروع میں تو آگے، تو کیوں یہ دوبارہ اس کو کیوں سٹریس دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم اگر کامیابی کے لیے، نماز کے لیے آؤ گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آؤ گے تو اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہوگا، اللہ پھر بھی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اللہ کی ذات پہ کوئی نعوذ باللہ فرق نہیں پڑ رہا۔ تو ہم اپنی کامیابی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نماز کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ دوبارہ سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اللہ کی، آپ نے ہمیشہ اس کی پکار پر لبیک کہنا ہے، تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ دیکھیں حدیث، یہاں پہ دو احادیث ہیں، ایک ابو داؤد کی اور صحیح مسلم کی، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کر۔ یہ دو اگزامپلز ہیں
کہ کس طرح لوگ پورا دن جو ہے وہ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اچانک سے موت تو پوچھ کے نہیں آتی، کسی ٹائم پہ بھی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کسی ٹائم بھی ہم مر جائیں تو ہمارے منہ پہ یہ کلمات خود بخود جاری ہو جائیں، کہ بہت سے ایسے بد نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو چلیں ابھی ہم نیکسٹ گرامر کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے اسٹوڈینٹس؟ چیٹ باکس میں رپلائی کیجیے۔ ٹھیک ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گرامر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کہ سبق 5B میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم گرامر میں لفظ کی قسمیں، جو میں نے آپ کو بتایا نا، لفظ کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تک اسم کے بارے میں پڑھا ہے، فعل ہم انشاءاللہ بعد میں جا کے آگے لیسنز میں پڑھیں گے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ حرف، حروف جر بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ کنیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عربی میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی ورڈ یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل، اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آج ہم نے کیا 3 حرف پڑھنے ہیں، لی، من اور ان۔ تو آپ نے خود کو تھوڑا ایکٹیو کرنا ہے، ٹی پی آئی کی مشق کر لیتے ہیں ہم تھوڑا۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، مائک کو بند رکھ کر سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے۔ ٹھیک ہے، خود کو تھوڑا ایکٹیو کریں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے آدھا گھنٹہ پورا میں بولتی رہتی ہوں اور آپ لوگ آرام سے بیٹھ کے بس سن رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کا ٹائم ہے، آپ نے خود کو انوالو کرنا ہے بیچ میں۔ چلیں آپ سے تھوڑا ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ مسلم ہے، ٹھیک ہے، من ہوا، اس کا آنسر کیا ہوگا؟ چیٹ باکس میں رپلائی کیجئے، من ہوا، من ہوا۔ آپ چیٹ باکس میں رپلائی کر سکتے ہیں۔ من کا کیا مطلب ہے؟ کون ہے وہ؟ سسٹر شفاعت العین۔ ٹھیک ہے، اس کا آنسر کریں، اس کا آنسر بتائیں مجھے عربی میں۔ اب آپ نے چیزوں کو نا بس خود ذہن میں رکھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن، اور خود عربک ٹو عربک چلنا ہے۔ ہوا مسلم، سسٹر حمائل، سسٹر پاکیزہ، سسٹر رحیلہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ہوا مسلم۔ ٹھیک ہے، ہوا مسلم۔ نیکسٹ ہے من ہم۔ اب یہ بس ہوا کی جگہ ہم ریپلیس ہو گیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسلم کی جگہ اس کی جمع لگا دینی ہے، ہم مسلمون۔ یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ جو میں نے آپ سے کہا میں آپ کو اکثر دکھایا کروں گی۔ اب یہ اسم کے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، الف لام، اور یہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، واو نون، یا نون، الف تا۔ تو یہ وہی ہے کہ الف لام جب کسی کے لفظ کے آگے لگے گا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اسم ہے، یا تنوین ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور جب ہم جمع کی بات کرتے ہیں تو واو نون، یا نون، اور مونس میں جب الف تا ہوگا تو اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے۔ اور فعل کو بھی رہنے دیں، حرف کی طرف آئیں، یہ دیکھیں جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے۔ تو آج ہم ان میں سے بی یہ والے پڑھیں گے، لی، من اور ان۔ تو آپ میں سے اگر مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ لی ہم نے اس سے پہلے کسی سبق میں پڑھا ہے؟ لی کسی سبق میں ہم نے لی پڑھا ہو، اگر آپ کے ذہن میں ہو؟ کسی کو یاد ہے؟ پڑھ کر آتے ہوتے ہیں آپ؟ جی، اچھا تو بتائیں کہاں پڑھا آپ نے؟ ویری گڈ، ماشاءاللہ، یاد تو ہے لیکن کہاں پڑھا؟
ली आप देखिए इसको दोनों तरह से हम कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ला भी होगा किसी वक्त और किसी टाइम ली भी। सूरतुल फातिहा में ब्रदर मोहम्मद अदनान ने सही रिप्लाई किया, लिल्लाही, वेरी गुड माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, लिल्लाही। वहां पे ये क्या था, ली की फॉर्म में था, लिल्लाही, सही है। और कहीं पे ये ला की फॉर्म में भी होता है, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे लहू वगैरह, ठीक है, जिस तरह लहू होता है। और इसके अलावा मिन, मिन बताएं, मिन हमने पहले पढ़ा है किसी में, किसी सबक में हमने मिन पढ़ा हो? अपने जहन को जरा जोर दे, स्ट्रेस दे। यस, कहाँ पढ़ा है मिन? इन हरूफ से तो आप पहले से ही वाकिफ हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वेरी गुड ब्रदर मोहम्मद अदनान। मिन, ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ताउज़ में सिस्टर राहिला, वेरी गुड। अन, अन भी आपने पढ़ा है कल, अगर आपको याद हो। अन भी आपने पढ़ा था कल, मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी थी, याद है किसी को? कल का सबक दोहराते होते हैं आप? क्लास में आने से पहले रिवाइज किया करें, थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और नहीं तो ग्रामर को अलबत्ता। अनअमता नहीं ब्रदर, ये वो अनअमता नहीं है, वो तो दूसरा है ना, हमजा जबर से शुरू होता है। अल्लाह, अनहा, जैसे हमने नहीं कहा रज़ियल्लाहु अनहा, अनहु, ठीक है, कि अल्लाह राजी हुआ उनसे, जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपको इससे फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, साहबा कराम के नाम के आखिर में नहीं जिस तरह आता है रज़ियल्लाहु अनहु, अनहा, ठीक है, ये वो वाला है। चले आज इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं। तो इन अल्फाज से, हरूफ से आप पहले से ही माशाल्लाह वाकिफ हैं। ये देखिए वही बात, ली, लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। मिन से, मिनश शैतान। और अन एक नया लफ्ज अलबत्ता, वो भी नया नहीं रहा, मैंने आपको बताया, कल भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। खैर आज हम इसको क्या करेंगे, इन हरूफ को जमायर के साथ जोड़कर उनके टेबल्स बनाएंगे। बहुत आसान है, आपने सब कुछ पहले किया हुआ है, सिर्फ हमने उनको आपस में जोड़ना है। तो ये तो हरूफ हो गए ना, ली, मिन और अन। तो ये जो नीचे है, हु, हुम, का, ये, कुम, ना और हा, ये सात क्या है, ये जमायर है, ठीक है, ये इसम है। इसमें जमीर जिसे कहते हैं, प्रोनाउन, इसको आपने मिक्स नहीं करना, इसको आपने याद रखना है कि ये जमायर है, इसमें जमीर है, प्रोनाउंस हैं। और ये जो ली, मिन और अन है, ये क्या है, हरूफ। अब आप देखें कि ये ली, मिन और अन सात जमायर के साथ जुड़कर इनके टेबल्स हम बनाएंगे। तो हु, उसका, हुम, उन सबका। आप भी मेरे साथ करें, माइक को बेशक बंद रखें और हाथ के इशारे भी करें और रिवाइज भी करें ऊंची आवाज में, कि आपके अपने कानों को आवाज आए, ठीक है। का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हम सबका या हमारा, और हा, उस औरत का। हा पढ़ा था ना आपने कल, अनहा। अब आपने हा को भी याद रखना है, ठीक है, मोन्नस का भी एक सीगा हमने इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। सात जमायर हैं, ठीक हो गया। आगे चले, अल्हम्दुलिल्लाही। तो यहाँ पे ला हम आसानी के लिए ला भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने अब ला को क्या किया है, ला हर्फ को इन जमायर के साथ जोड़कर एक टेबल बना दिया, ये पूरा एक टेबल है। तो हु का मतलब तो सिर्फ था ना उसका, तो लहू का क्या मतलब हो जाएगा, उसके लिए, लहुम, उन सब के लिए, लका, आपके लिए, ली, मेरे लिए, लकुम, आप सबके लिए, लना, हमारे लिए, लहा, उस औरत के लिए। कोई ये करवाना चाहता है टेबल? हैंड रेस कीजिए और इस टेबल को जरा रिवाइज करें, दोहरा लें, ताकि जरा आप जहनों में बैठ जाए ये चीज। हैंड रेस कीजिए जल्दी से, ठीक है सिस्टर पाकीज़ा, आप करवाएं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। वेरी गुड सिस्टर। इशारे करने हैं, ठीक है, जब सिस्टर कोई भी ब्रदर सिस्टर करवा रहे हो वो भी करें इशारे, और जो सुन रहे हैं वो भी इशारे लाजमी करें, क्योंकि मैं आपको शुरू से अभी से बता रही हूँ कि आगे हम जब अफाल करेंगे उसके लिए भी हमारे इशारे होंगे, और वो बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, उसमें, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता जमाना शामिल हो जाता है, तो हम अपने इशारों से ये चीज भी समझाएंगे कि ये बात पहले हो चुकी है, ये अब होगी। तो आपने फिर इशारों को मिक्स नहीं करना, इसको जहन में रखना है। तो चले डायलॉग करते हैं। और ये देखें कि हम इधर कुरान की मिसाल ले लेते हैं ना, कि कुरान, तो अहाजा लहू, आ का मतलब मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि होता है क्या।
तो क्या, हाजा ये, लहू उसके लिए। हम कुरान की यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या ये उसके लिए है, तो आप क्या आंसर करेंगे? नाम हाजा लहू, हाँ ये उसके लिए है। ठीक है, ये उसका मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कुरान। अहाजा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है, मतलब उन तमाम ज्यादा लोगों के लिए है वो कुरान। नाम हाजा लहुम, जी ये उन सब के लिए है। अहाजा लका, क्या ये आपके लिए है, तो आप क्या आंसर करेंगे? कोई भी माइक अनम्यूट करके मुझे बताए इसका आंसर क्या होगा अहाजा लका का। हाजा ली। वेरी गुड माशाल्लाह। नाम हाजा ली। अहाजा लकुम, इसका आंसर कोई भी करे मुझे, जिसके पीछे शोर ना हो प्लीज, वो बस जहन में रखें और माइक को अनम्यूट करके वो बोल सकते हैं। ठीक है सिस्टर उम्मे सलमा, आप बता दें। नाम हाजा लना। शाबाश, वेरी गुड माशाल्लाह। इसका मतलब है आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, आगे अब देखिए सेम वही चीज है, बस हमने यहाँ पे वाह का इजाफा कर दिया। वाह आपको पता है ना, वाह का मतलब और। ठीक है, तो अब वाह के साथ वही सारा टेबल है। वलहु, और उसके लिए। वलहुम, और उन सब के लिए। वलका, और आपके लिए। वली, और मेरे लिए। वलकुम, और आप सब के लिए। वलना, और हमारे लिए। वलहा, और उस औरत के लिए। इसको कोई करवा दे प्लीज। और कोई नए लोग भी सामने आया करें, वही स्टूडेंट्स बार बार रिपीट करते हैं। ये देखें सिस्टर पाकिज़ा, इसके अलावा मुझे किसी और का भी हैंड रेज नजर आना चाहिए। चलें सिस्टर आप करवा दें। वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए, वलहा और उस औरत के लिए। वेरी गुड माशाल्लाह। अब फा को हमने और कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे हमने क्या किया, फा का एडिशन कर दिया, फलाहू, बस उसके लिए। इसे कौन करवाएगा? सिस्टर पाकिज़ा के अलावा कोई करवाए? कोई हैंड रेस करे, शाबाश। 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और कोई भी नहीं सामने आ रहा। इसमें क्या मुश्किल है, सब कुछ आपके सामने मौजूद है, बस आपने करवाना है, सिंपल। ठीक है सिस्टर उम्मे सलमा, आप करवा दीजिए। फलाहू बस उसके लिए, फलाहुम बस उन सब के लिए, फलाका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलाकुम बस आप सब के लिए, फलाना बस हमारे लिए, फलाहा बस उस औरत के लिए। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चले सिस्टर शहीन आपसे अगला करवाते हैं। ठीक है, ये देखिए मिन, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, उससे हमने क्या याद रखा, मिन का क्या मतलब है, से। तो मिन हु, उससे। अब हमने क्या किया, मिन को उन्हीं तमाम जमायर के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, सिस्टर शहरीन आप करवा दीजिए इस टेबल को, इशारे भी कीजिएगा साथ। बाकी सब भी करें, जो भी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। ठीक है सिस्टर शहरीन, मिनहू हाँ करवाएं। उस आवाज आ रही है आपको? जी जी करवाएं। मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा, मिनहा उस औरत से। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये देखिए, अभी मिन के साथ जैसे अभी हमने पहले किया था ना लहू के साथ, तो अभी आपने सेम वही पैटर्न है, वही चीज है, सिर्फ डायलॉग की फॉर्म में किया जाता है ताकि थोड़ा और क्लियर हो। अरबी बोलचाल बताया था ना कि हमारा बोनस होगा, 100 जुमले हम इंशाल्लाह अरबी में सीख जाएंगे। तो अहाजा मिनहू, क्या ये उससे है, कि मतलब उसने ये कुरान दिया आपको, क्या ये उससे है, उससे बिलोंग करता है, तो आपने क्या कहना है, नाम हाजा मिनहू। ठीक है, अब मैं आपको उर्दू में नहीं बताऊंगी, बस आपने अरबी टू अरबी आपने अपने जहन में रखना है। आपको खुद उसका मतलब बस जहन में होगा, आप उसका अरबी में आंसर करेंगे सिर्फ। अब अहाजा मिनहुम, इसका आंसर क्या होगा? कोई भी माइक को अनम्यूट कर दे और बताएं इसका आंसर। अहाजा मिनहुम, बहुत इजी है। ओके सिस्टर शिफातुल, नाम हाजा मिनहुम। वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है,
आगे चलते हैं। अहाजा मिन का, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आप सब बोलें, कोई मसला नहीं है। अहाजा मिन का। नाम हाजा ना हम हाजा ना मिन, हम हाजा ली। नो नो, मिन का। देखिए, का आंसर क्या होता है? अपनी तरफ इशारा होता है ना। तो मिन्नी, नाम हाजा मिन्नी, कि क्या ये आपसे है? तो जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप अपनी तरफ इशारा करते हैं ना, अपना, कि हाँ जी ये मुझसे है, ठीक है। तो आपने हमेशा ये चीज जहन में रखनी है, जो हु और हुम होता है ना, वो एज इट इज उसका आंसर आ जाता है। लेकिन जब कन्वर्सेशन चल रही होती है, आप दो लोग आपस में, सामने वाला और अपनी बात हो रही होती है, तो मिन का आपसे, तो आपने कहना है मिन्नी, मुझसे। तो जब मिन कुम, आप सबसे, तो आपने कहना है मिन्ना, हम सबसे। ठीक हो गया? अब देखिए, अहाजा मिनकुम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाम हाजा मिन्ना। ये दोबारा आई थिंक रिपीट हो गया। कोई दो लोग सामने आ जाए, हैंड रेज करें, तो वो आपस में एक क्वेश्चन करे और एक आंसर करे। कोई भी दो लोग हैंड रेज करें, जिन्होंने पहले ना करवाया हो, काइंडली वो कोशिश करें सामने आने की। ठीक है सिस्टर हमायल, सिस्टर पाकिज़ा ठहरे, अगर कोई और विलिंगली हैंड रेस करता है तो फिर और कोई, सिस्टर शिफातुल्लाह के अलावा कोई और भी है? सिस्टर मरवा, ठीक है। सिस्टर हमायल आप क्वेश्चन करेंगी, सिस्टर मरवा आप उन्हें रिप्लाई करें। स्टार्ट कीजिए। अहाजा मिन नाम हाजा मिनहु। अहाजा मिनहुम नाम हाजा मिनहुम। अहाजा मिनका नाम हाजा मिन्नी। अहाजा मिनकुम नाम हाजा मिन्ना। एक्सीलेंट सिस्टर्स, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा करवाया आप लोगों ने। अब ये देखिए, वही टेबल है, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, वा का एडिशन कर दिया। वमिन हु, और उससे, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे और का इजाफा आ जाएगा, और उससे। वमिन हुम, और उन सब से। वमिन का, और आपसे। वमिन्नी, और मुझसे। वमिन कुम, और आप सबसे। वमिन्ना, और हमसे। वमिन हा, और उस औरत से। आपने इसको हाथ को लाजमी चेंज करना है कि, ठीक है, मोन्नस का इशारा हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, ठीक है। तो जब वमिन हा आएगा तो आपने फौरन हैंड को चेंज करना है। तो अब अनहु, अन के साथ हमने क्या अटैच कर दिया? हु। अनहु, उससे। अनहुम, उन सब से। अन का, आपसे। अन्नी, मुझसे। अनकुम, आप सबसे। अन्ना, हमसे। अनहा, उस औरत से। कि रजी अल्लाह अनहु, राजी हुआ अल्लाह उन सब से। मिन का मतलब भी से है, ठीक है, और अन का मतलब भी से है। लेकिन अन का एक और मानी भी होता है कि उसके बारे में, जैसे हम किसी के बारे में बात करते हैं, तो इसका हम ये भी कह सकते हैं कि उसके बारे में। अब कोई ऐसा स्टूडेंट सामने आए जिसने पहले ना करवाया हो, एक फर्स्ट टेबल वो करवाए, सेकंड फिर हम किसी और से करवाएंगे, थर्ड किसी और से। जिसने पहले ना करवाया हो, हैंड रेस कीजिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, आपके सामने सब कुछ स्क्रीन पे गिवन होता है, आपने सिर्फ उसको पढ़ना है देखकर। इतने स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, और कोई भी हैंड रेज नहीं करता। आई एम सरप्राइज, वही चंद लोग बार बार रिपीट होते हैं। सिस्टर कवल, गो अहेड। सिस्टर कवल लहू उसके लिए। लहू, आ रही है आवाज? जी जी करवाएं। लहू उसके लिए। लहुम उन सब के लिए। लका आपके लिए। ली आ, मेरे लिए। मेरे लिए। लकुम आप सब के लिए। लमा, लना। मुझे इसमें बिल्कुल वो छोटा छोटा समझ नहीं आ रहा। लना हमारे लिए। लहा उस औरत के लिए। ठीक है, वेरी गुड सिस्टर। अच्छा, नेक्स्ट कौन था जी? नेक्स्ट किसने हैंड रेस किया हुआ था? सिस्टर शिफा, आप करवा दें।
मम्मा करवाएंगी। अच्छा, यही वाला मेरी तरफ से। मिन हु वाला टेबल करवा दीजिए, ठीक है। मिनहुम मिनहुम उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिनहा उस औरत से। ठीक है सिस्टर, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। सिस्टर हमारे, आप करवा दें अनहु का। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। वेरी गुड माशाल्लाह। सिस्टर सफा, आर यू देयर? तो आप भी यही वाला रिपीट कर दें, अनहु वाला। आपने अभी हैंड रेस किया था। सिस्टर सफा, अगर आप हैं अवेलेबल तो आप करवा दीजिए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। वेरी गुड सिस्टर माशाल्लाह। आप ये देख रहे हैं 5,000 बार तकरीबन ये अल्फाज आए हैं। आपने इसको अगली क्लास तक इंशाल्लाह अच्छा सा मेमोराइज करना है, अच्छा सा याद रखना है, ठीक है। 5,000, ये कोई छोटी बात नहीं है। कुरान के 5,000 अल्फाज का तर्जुमा आप खुद से करने लग जाएंगे, सिर्फ 3 नए अल्फाज की मदद से। कौन कौन से? ली, लिए, मिन, से, और अन का मतलब भी क्या है? से। तो चले अब आपसे टेस्ट लेते हैं, देखो ना कितना आप क्लास में एक्टिव होते हैं। लहुम, लहुम का क्या मतलब है? इसका इशारा भी कीजिए और मुझे इसका उन मतलब। सब के लिए। लहुम का क्या मानी है? उन सब के लिए। वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, चैट बॉक्स में भी लोग रिप्लाई कर रहे हैं। मिन्ना, वेरी गुड सिस्टर राहिला, सिस्टर शहरीन, सिस्टर हमारे, सबने आंसर किया है। ठीक है, आप चैट बॉक्स में ही मुझे रिप्लाई कीजिएगा मिन्ना। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। मिन्ना, मैं इशारा कर देती हूँ आपके लिए, मिन्ना। हम सबसे, सिस्टर शिफा विन कर गई हैं जी। अब सबके माशाल्लाह रिप्लाई आते जा रहे हैं। मरियम आजम, सिस्टर हमारे, सिस्टर पाकिजा, हम सबसे। ठीक है, अनकुम, अनकुम, अनकुम। सिस्टर पाकिजा आप सबसे, सिस्टर राहिला, सिस्टर शिफा, वेरी गुड। सिस्टर अरमिश माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी इन्वेस्टमेंट काम कर रही है। तो टेस्ट में माशाल्लाह आप लोग पास हो रहे हैं। नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम आज का बहुत प्यारा है कि हम अल्लाह से इल्म की भीख मांगे। और वो वही फॉर्मूला जो मैं आपको दिखाती हूँ, तसव्वुर और एहसास के साथ आपने दुआ मांगनी है, ठीक है। और वो दुआ अल्लाह ताला ने खुद सिखाई है हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कौन सी दुआ है? रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये दुआ हमें भी बचपन से सिखाई जाती थी, हमारे पेरेंट्स शुरू से बताते थे, लेकिन उस टाइम पता नहीं था। अब जब नॉलेज, वही बात है ना, इल्म हासिल करने के बाद जब आपको पता चलता है, फिर आपका इल्म के लिए दुआ मांगना भी एक डिफरेंट ही अंदाज होता है उसका। तो आप ये देखें, जो स्लाइड मैंने शुरू में भी बताई थी कि 57 अल्फाज इस सबक के इख्तिताम पर आपने सीखे हैं, जो कुरान में 19,000 बार आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि इतना ज्यादा, इतनी रफ्तार से आप माशाल्लाह ये चीजें सीखते जा रहे हैं, और इतने आसानी से माशाल्लाह। तो ये होमवर्क है जो मैं आपको हमेशा ये स्लाइड दिखाती हूँ क्लास के एंड पे, इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि 20 से 30% लोगों के मुझे वर्कबुक वाला काम आ रहा है। तो कोशिश करें कि सारे सारे मुझे साथ साथ करके भिजवाएं। और ये चीजें आप जहन में रखें, किताब से पढ़ना, मुसहफ से, हाफजे से, ठीक है। इस कोर्स की आप रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। अपने साथी से इसकी बातें करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतें बदल बदल के पढ़ा करें। और ये बात कभी नहीं भूलनी कि आप क्या हैं? मुंतखब हैं, चोजन वन, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला इंतखाब करता है, ठीक है। तो आपका इंतखाब किया गया है, इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना।
اور ٹیچر بننا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ تو آخر میں ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو کلاس ہماری اینڈ ہو گئی الحمدللہ۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتا ہے۔